chapter 3 of grammar. This chapter is about nouns, countable and uncountable. You have already learnt about nouns in your previous classes. You know that a noun is the name of a person, place or thing. You have also learned about the various types of nouns such as common, proper, collective, material and abstract noun. Now we shall learn another classification of nouns as countable noun and uncountable nouns. Countable nouns are nouns that refer to something that can be counted. They have both singular and plural forms. Uncountable nouns are nouns that refer to something that cannot be counted. Uncountable nouns have only the singular form. डियर स्टूडेंट, आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नाउन के बारे में पढ़ा होगा और इसके टाइप्स के बारे में भी जानते हो जो हमको बताए गए हैं, जैसे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसके क्लासिफिकेशन में का जो फॉर्म बताया गया हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वे काउंटेबल कहलाती हैं और वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वे अनकाउंटेबल कहलाती हैं और वे सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। अब इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। काउंटेबल नाउन, we can use a or an before singular countable noun. Look at the following sentences. In the first sentence we have used an eraser and in the second 3 erasers. Likewise, in the third sentence we have used a computer and in the fourth 20 computers. Why? Can you count eraser and computer? The answer is yes. You can say that eraser and computer are countable noun. किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं, जैसा हमको एग्जांपल में बताया गया है। यानी हम इरेजर और कंप्यूटर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको काउंटेबल नाउन कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, we do not use a or an before uncountable noun. They are used only as singular. Look at the following sentences. अनकाउंटेबल नाउन में हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा अभी बताया गया है। इज देयर some water in the jug? No, there's no water in the jug. Noun like water, juice, milk and love cannot be counted. They are uncountable. यहाँ जो वर्ड बताए गए हैं जैसे वाटर, जूस, मिल्क एंड लव, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। Ask yourself if the noun in the following sentences are used correctly. यहाँ पर जो नाउन बताई गई हैं, I like teas, he prefers milks, Hari drinks coffees, नो दे आर नॉट यूज करेक्टली। यहाँ जो नाउन बताई गई है वो करेक्ट नहीं है। दिस नाउन एज यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास आर मटेरियल नाउन्स और मास नाउन। यू कैन नॉट काउंट देम, दे आर अनकाउंटेबल, दे आर जनरली यूज ओनली इन सिंगुलर। यहाँ पर जो नाउन बताई गई है ये नाउन यहाँ पर सिंगुलर ही कहलाएंगी, इनको हम प्लूरल में काउंट नहीं कर सकते हैं। Correct use of countable and uncountable noun. When using countable or uncountable noun, pay attention to article and adjective. Some article and adjective can be used with both countable and uncountable nouns. However, other can be used with only countable or uncountable nouns. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल और एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ही यूज़ होते हैं। यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन ओनली, जो सिर्फ काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं, जैसे ए और एन, मेनी, फ्यू, अ फ्यू। यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन ओनली, ये सिर्फ अनकाउंटेबल में यूज़ होते हैं, मच, लिटिल, अ लिटिल। आप एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Now such as sunglasses, scissors, jeans, pants, shorts and slacks are usually treated as plurals. We can indicate their number by using a pair of or pairs of. Some nouns are always plural. Now look at the following sentences. In all these sentences we find s at the end of the italicized noun, but they are singular. They are the names of a subject, a sport, a place and a
डिसीजेस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, उनमें सन ग्लासेस, सीजर, जीन्स, पेंट्स, इनको हम उनके नंबर के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। जैसे I need to have a pair of jeans. He has 3 pairs of shorts. कुछ नाउन जो प्लूरल होती हैं, जैसे एग्जांपल में हमको दिख रहा है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इकोनॉमिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिलियर्ड इज अ फेमस गेम। यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसको हम प्लूरल में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है। यहाँ बिलियर्ड को भी हम प्लूरल में काउंट नहीं करेंगे, सिंगुलर ही है। ऐसे ही कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको हम प्लूरल में काउंट नहीं करते हैं, वो सिंगुलर ही रहती है।